दुर्बैन कोट सैन संग शोभ कैत मांझ सोध जिस दही भांत खाहे जियो। देख रूप अत्यनूप मोह महामग भई किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम ज्ञान ध्यान धरत ही चाहे जियो। सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जिस पास बैठिया सोहीऐ सबना दा विसाह। वाहिगुरु साहिब जी कबीर मारू राम सिमर पछुताहेगा मन पापी जियरा लोभ करत है। आज काल उठ जाहेगा राम सिमर पछुताहेगा मन पापी जियरा लोभ करत है। आज काल उठ जाहेगा रहा लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा। धन जोबन का गर्भ न कीजै कागद ज्यों गल जाहेगा। जो जम आए केस गह पटकै तां दिन किस ना बसाहेगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाहेगा। धर्म राय जब लेखा मांगै क्या मुख लैकै जाहेगा। कहत कबीर सुनो रे संत साध संगत तर जाहेगा। धर्म राय जब लेखा मांगै क्या मुख लैकै जाहेगा। कहत कबीर सुनो रे संत साध संगत तर जाहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, इस पावन शब्दी विचार आप जी ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੂਕੇ ਵਾਲੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਏ ਆਜਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ 5 ਚੇਤਰ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਨੇੜੇ ਤਹਿਸੀਲ ਫੈਲੌਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਦਿਨ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛੁਤਾਹੇਗਾ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛੁਤਾਏਗਾ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛੁਤਾਹੇਗਾ ਮਨ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛੁਤਾਏਗਾ। ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤੋ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤੋ ਹੈ। पापी जियरा लोभ करतु है, पापी जियरा लोभ करतु है। आज काल उठ जाएगा, आज काल उठ जाएगा। राम सिमर पछुताएगा मन, राम सिमर पछुताएगा, राम सिमर। राम सिमर पछुताएगा मन, राम सिमर पछुताएगा, राम सिमर। गुरु बाबा जी छत्र चबर तख्त दे मालिक, लोक परलोक दे सुखां दे दाते, सिखां दी जिंद जान, सिखां दी जिंद जान, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। उन्हां दी पावन गोद विच, दरबार विच, प्यार विच, ज्ञान प्रकाश विच समूह सत्संगी माई भाई बाला प्रीतम सतगुरु जी अते धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी दे इस चरण छो अस्थान पे जितने भी जुड़ बैठे हो या टेलीविजन के राही दूर दुराडे आपो अपने स्थानों ते जुड़े बैठे हो, मन चित एकाग्र करके सबना नूं जी आया। निसंदेह आप जी खुशकिस्मत हो, रोज़ जुड़ते हो। तुहाडे दर्शन करदियां होया मैं भी अपने आप नूं खुशकिस्मत प्रतीत करदा। परदेसां विच इधर उधर विचरदियां होया जदों भी सबब बनता है गुरमुख प्यारियां दे प्रबंधक सज्जनां दे सरदार मनजीत सिंह जी के उन्हां दी प्यार वाली अगवाई दे विच टीम दे वल्लों समा बन जाता है
ਮਾਣਯੋਗ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਭਲਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਸੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ 1106 ਪੰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। 3 ਪਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 3 ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕਬੀਰ, ਫਿਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। 2 ਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰੂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਤ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਲਗ ਮਾਤਰੀ ਭੇਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛੁਤਾਹੇਂਗਾ ਮਨ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਮ ਸਿਮਰ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰੇਗਾ ਪਛਤਾਹੇਂਗਾ ਮਨ। हे ਮਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਂਗਾ। ਪਛਤਾਏਂਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਜੀ, ਜੀਅਰਾ, ਜੀਅਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੰਦ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਮੰਦ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਭ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਵ ਪਲਕੇ, ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਛਤਾਏਗਾ ਮਨ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ?
राम सिमर। फिर तू राम दा सिमरन कर। मैं एक बेरा फिर दोहरा दियां, ये शब्द बहुत कॉमन है। रागी सिंह अक्सर सानू सरवण करवाया करते हैं, असी प्यार नाल शब्द पढ़िया करते हैं। राम सिमर, राम नू सिमर। राम शब्द का जिहड़ा अर्थ है वो श्री राम तो नहीं है, दशरथ जी के बेटे तो भाव नहीं है। इत्थे उस श्री राम का जिक्र है जिस श्री राम नू दशरथ जी दे बेटे ने भी आराध्या सिमरिया, जिस राम नू ध्रुव ने भी सिमरिया, जिस राम नू प्रहलाद ने भी सिमरिया। ये दोवें हस्तियां दशरथ जी के राजकाल या उन्होंने दे गृह विखे जन्म लैण वाले रामचंद्र उन्हों तो पहला हो चुकियां ने, इसलिए मैं उदाहरण दित्तियां ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इस राम नू आराधन दे लई अनेकां वार जिक्र किया गया। एक गल अलग है, साडे ध्यान करन वाली है ते हमदर्दी रखण वाली है। वो ये है कि जिस वेले दशरथ जी के गृह विखे रामचंद्र जी होए जिन्होंने अवतारी पुरुष आख्या गया, उस समय उन्हों की महिमा भी इतनी ज्यादा जगत विच पसरी कि लोग उन्होंने ही अविनाशी राम समझ के उन्हों का आराधन करन लग पाए। ये गल अलग है। पर सतगुरु जी ने, गुरु नानक साहब ने जिथे उस अविनाशी परमेश्वर दे, परम ईश्वर दे, परमात्मा दे बाकी नामां दा जिक्र किया है ना, गोबिंद आखिया, नारायण आखिया, इसे तरह उन्होंने बेअंत नावां दे विचों राम भी आखिया, हरि शब्द भी आखिया, अनेकों वार ही जिक्र विच आउंदा है। तो इसलिए ध्यान रखना, जदों राम आखिया बाबा कबीर जी ने तां त्रेता दे युग दे विच, त्रेता दे काल दे विच राजा दशरथ दे गृह विखे जन्मे श्री राम का जिक्र नहीं है, उसका जिक्र है जिस दा आराधन, जिस अविनाशी राम का आराधन इन्हां ने भी किया। तो सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह इसे लई बाबा कबीर जी दे इस शब्द नूं उन्होंने अंकित किया, दर्ज किया, जिहड़ा उही प्रेरणा करवाउंदा है जिहड़ी प्रेरणा सतगुरु गुरु नानक साहब आप करवाउंदे सन। हुण सत्कारयोग बाबा जी ने की आखिया, उन्हों के मुखारबिंद तो यह पावन वचन, राम सिमर पछताएगा मन, जे नहीं सिमरेगा तो फिर पछताएगा। पापी जीयरा लोभ करता है, यह कहने की लोड़ नहीं पैंदी। कुदरती नैचुरल साडे मन की बिरती इस पासे, लोभ वाले पासे अपने आप झुका रखती है। केवल मां बाप वाल वेख के बच्चा लोभ नहीं करता, कुछ ना करतारी बिरती है कि इस देही दे विच लब लोभ अहंकार करतार ने पा के तोरिया सन, इसलिए साडी बिरती इस पासे वाल छेती झुकदी है, इस पासे वाल छेती जाती है। उसने अपनी जोत भी अंदर टिकाई हुई है, शुभ गुण भी अंदर टिकाए हुए हैं, पर जिवें कि सुभावक है ना, उपर नूं चढ़ना थोड़ा जिहा कठिन जिहा हुंदा है, उधर ध्यान घट लोगों का जाता है,
ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਪੀ ਜੀਅਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਭ ਦੀ ਕਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ, ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ, ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਜਿਆ। 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, 50 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਤੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਤਨੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਸ ਚਲੋ ਬਈ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਾਪੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੋਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਅਰਾ। ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪਛਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਵਾਬ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਰਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਬਤ ਸੋਚੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਵਸਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪੱਟ ਲਏ ਨਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਭਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ, ਮੋਹਲਤ ਮੋਹਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨਮੈ ਤੇ ਸਹਿ ਸਰੇਵ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਦਿ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ,
वो अपरंपर है, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल न कर्मा जात अजात, अजूनी संभव ना तिस भाव न भरमा। उस परम हस्ती नूं सिੱਖੀ मंडल विच सिख दे वास्ते जिसने सतगुरां नाल प्यार किया, उन्होंने वाहिगुरु कह के इंट्रोड्यूस करवाया है, जान पछाण करवाई है। ये गल स्पष्ट रहनी चाहिए है। सिख ने उस वाहिगुरु जी दे नाल सांझ किवें पाउणी है, सिमरना किवें है। कितनी बार बाणी विच राम सिमर आया, राम ध्याया आया, राम भज आखिया, और होर इस प्रकार के अनेकां ही जपना आराधना सिमरना भजना चेते करना इत्यादि सिख किवें करे। जिवें सन्यासी करते हैं उवें करे, जिवें बैरागी करते हैं उवें करे, जिवें धूणियां ता के तपस्या करने वाले करते हैं उवें करे, जिवें दूसरे मतां मतांतरां वाले मूसा जी नूं अपना आगू मनण वाले, ईसा जी नूं अपना आगू मनण वाले, मुहम्मद जी नूं अपना आगू मनण वाले, या सनातनी मत वाले उस तरह करे आराधे कि किसी होर ढंग दे नाल। यह नुकता साडी सदा ध्यान च रखना चाहिए। पठन पाठन तो बाद विचार करन तो बाद जो गुरु खालसा जी ने साडे लई सेध निर्धारित की है, गुरबाणी के अनुसार, इतिहास के अनुसार, परंपरावां के अनुसार, उस दे अनुसार सिख ने अमृत वेले प्रभाते जाग के एक अकाल पुरख का ध्यान धरदियां होया वाहिगुरु जपना है। फिर उसका ध्यान धरदियां होया फिर गुरबाणी का पाठ करना है। गुरबाणी का पाठ करन तो बाद फिर संगत विच आके जुड़ के शब्द कीर्तन ते शब्द दी विचार ये करनी है। करना अथवा सुनना एक ही गल है। मैं फिर दोहरावां, प्रभाते जाग के पैर रात रहिंदी जाग के, ऐसा आदेश है हर सिख कहाउण वाले नूं। मैं उठ सकां ना उठ सकां, मेरी मजबूरी या मेरी कमजोरी हो सकती है, पर यह हुक्म साडे सारियां दे वास्ते है। जिन्हां ने अमृत छक लिया उन्हां वास्ते भी, जिन्हां ने अजे अमृत नहीं छकिया उन्हां वास्ते भी, कि पैर रात रहिंदी जाग के। पैर रात रहिंदी तो भाव है प्रभाते 3 बजे जाग के स्नान पान करके ते फिर एकांत मन दे नाल वाहिगुरु दे ध्यान विच बैठना, फिर पवित्र बाणियां दा पाठ करना, उपरंत कीर्तन श्रवण करना अथवा कथा श्रवण करनी, विचार करनी। ये साडा नाम जपण दा यतन है। इस ढंग दे नाल सिख ने राम नूं सिमरना है। मैं दूजे लफ्ज़ां विच आखां, राम सिमरन दे, प्रभु ध्याउण दे, वाहिगुरु ध्याउण दे साडे 4 साधन ने, 4 चरण ने, और ये 4 साधन ही असां ने सिख ने अपने जीवन विच अपना के चलना है। ऐसा नहीं कि वाहिगुरु वाहिगुरु कहना है तो बाणी पढ़न की लोड़ नहीं, बाणी पढ़न वाले ने वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं कहना, उन्होंने लोड़ नहीं। ऐसा करन वाले ने गुरबाणी कीर्तन नहीं सुनना, उन्होंने लोड़ नहीं। कीर्तन सुनने वाले ने कथा नहीं करनी, कथा नहीं सुननी, उन्होंने लोड़ नहीं। ये नहीं गल। ये स्थापित गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने साडे सबना दे जीवन दे वास्ते कीते। मैं एक उदाहरण देंदा, आप नाल साझी करदा।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਸ ਈਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ 1602 ਜਾਂ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1595 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 1602-3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਭਲਾ? 7 ਕਿ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ। ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਧੇਰੇ ਰਸਮਈ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। श्री अर्जन ले गोद में सिखिया सिख रामे। गुरु अर्जन साहब ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਮੱਜਨ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਾਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਮ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਰ। ਜਾਮ ਜਾਮਨੀ ਜਾਗੀ ਹੈ ਮੱਜਨ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਹੋਏ ਇਕੰਤ ਮਨ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੀਜੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੀਜੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁ ਕੰਠ ਕਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਤ ਉਚਾਰੋ। ਦਿਹਾੜੀ ਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਉੱਠ ਪ੍ਰਾਤ ਉਚਾਰੋ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਸਨੇਹ ਤੇ ਨਿਜ ਧਰਮ ਸੰਭਾਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਸਨਮਾਨੀਐ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਜੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਆਦ ਤੇ ਮਾਰਗ ਦਿਖੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੀਜੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਕੰਠ ਕਰ। ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੋਕੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ
शब्द की विचार सुननी है। ये 4 अंग ने, 4 चरण ने सिख दे लई हरि नूं ध्यान दे, राम नूं ध्यान दे। और इन्हां विच 2 ने जाति, जिन्हां नूं जाति कहा जा सकता है, ते 2 ने जमाती। 2 ने असां ने जिहड़े खुद घर बैठ के वाहिगुरू जपना, कहना एकांत एकाग्रता नाल, ते गुरबाणी पढ़नी एकाग्रता नाल। ते 2 ने जमाती, कीर्तन इकल्ले व्यक्ति का नहीं हुंदा ते कथा इकल्ले व्यक्ति की नहीं हुंदी। घट्टो घट 2 ते वध तो वध जितना हो सके। 2 ने साडे जमाती, जिन्हां नूं असीं संगती कह सकते हैं। 2 इंडिविजुअली ते 2 कॉन्ग्रीगेशनली, संगती रूप दे विच। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने नोट किया, एक बार सारे दोहराइए, राम सिमर पछुताहेगा मन, राम सिमर पछुताहेगा, राम जे तू अपनी बिरती इधर नहीं लिया, जे तू अपना ध्यान इधर नहीं लिया, तो चेता रखी पापी जीरा लोभ करत है। बस ये लोभ करदा 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 ही तुरया जाएगा, पर आज काल उठ जाएगा। आज या भलके उठ के जाना है, जाएगा। रहो लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाहेगा। लालच लागे जन्म गवाया, इसे लालच दे वल लगा होया जन्म गवाया, सारा जीवन इवें बिता लिया। माया भरम भुलाहेगा, तुकांत जड़ा ना वही रखिया बाबा जी ने लगातार। भाव है माया दे भरम विच भुलिया होया, लालच लागे जन्म गवाया। धान जोबन का गर्भ ना कीजै, कागद ज्यों गल जाहेगा। धन जोबन का गर्भ ना कीजै, फिर सुचेत कर दिता। हुण जिहड़े बंदियां दा ध्यान हर वेले धन वाले पासे होवे ना, एक तो धन का लालच ते धन का दूजा ना चंद्रा सुभाव है कि जिदे पास थोड़ा जिहा चोखा हो जाए ना, उहदे अंदर फिर हंकार आउण लग पैंदा है। क्योंकि करन वाले नूं पता हुंदा है ना, मैं कितने यतन कर करके, कितने वल नाल छल नाल मैं सारा कुछ कीता है, मेरे कोल हुण इन्ना सारा हो गया है। सुभावक है, गर्व आ जाएगा, हंकार आ जाएगा। बाबा जी के जिस वेले श्लोक असी पढ़ते हाँ, उहदे विच वचन आउंदे ने, गर्भ के संबंध में सुचेत करते हैं। कबीर गर्भ न कीजिए, देही देख सुरंग, आज काल तज जाहोगे ज्यों कांचुरी भयंग। फिर कहते हैं कबीर गर्भ न कीजिए, ऊंचा देख आवास, आज काल भोए लेटना, ऊपर जामै घास। कबीर गर्भ ना कीजिए, रंक ना हसीए कोय। तेरे पास धन बहुत हो गया, तू एक तरह का अमीर हो गया, राजा बन बैठिया, धनी हो गया, पर रंक ना हसीए कोय। कोई भी भुल ना करो, जे किसी गरीब की गरीबी वेख के तो तुसी हासी करो कि मैं इतने यतन करके अपनी सियाणपा नाल चतुराइयां नाल इन्ना सारा मैं धन जोड़ लिया, तां की हो गया। कबीर
गर्व ना कीजिए रंक न हंसिया कोई, क्यों अजो सो नाव समुद्र में क्या जानो क्या होए। नोबॉडी नोज व्हाट विल हैपन टुमारो। अजो सो नाव समुद्र में, नाव कहते ने बेड़ी नूं, ओए भलिया अजे तां बेड़ी तेरी समुद्र दे विच है, दरिया विच है, तैनू ध्यान नहीं है कि नदर उपट्ठी जे करे। वाहिगुरू की बचन है भला, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना का कराएंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा, नदर उपट्ठी जे करे। की पता है, नोबॉडी नोज। मैं जिस वेले विचार कर रहा सा, वाहिगुरू मेरे ज़हन विच ना ध्यान विच साडे सिख इतिहास का एक बहुत बड़ा पात्र आया। वो पात्र कौन सी? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह होरां दा सपुत्र सब तो छोटा, तुहानूं नाम याद होएगा मेरा ख्याल है, पिछले दिनों च मूवियां शूवियां भी आईयां ते कुछ इस तरह चर्चा भी चली। सिखां नूं चेते रखना चाहिए है, लाहौर दरबार का सब तो अखीरला महाराजा, महाराजा रणजीत सिंह का सब तो छोटा बेटा जिसका नाम सी महाराजा दलीप सिंह। दलीप सिंह के अगे 7 बच्चे सन, 4 लड़के सन ते 3 लड़कियां सन। उन्हां 7 दे विचों सिर्फ एक दी वधेरे चर्चा है, जिसका नाम आरंभ दे विच पैंदा है बंबा। एक्चुअली उहदा नाम सी सोफिया, मां का नाम सी बंबा। बंबा मूलर की धी सी। महाराजा दलीप सिंह दी 2 शादियां सन, पहला मूलर दे नाल, बंबा मूलर नाल। जिस वे नाम रखा गया, नाम रखा गया बंबा सोफिया। ते बंबा दी दादी का नाम सी, जदों सियाणी हुई तो इहने अपने नाम नाल दादी का नाम भी जोड़ लिया। पता दादी का की नाम सी पड़ा? महारानी जिंदा। बंबा सोफिया जिंदा ते अखीर ते बाप का नाम भी नाल जोड़ लिया अपने नाम दे विच, दलीप सिंह। बंबा सोफिया जिंदा दलीप सिंह। 1869 दे विच ना इसका जन्म होया लंडन दे विच। समा पैण ते जदों इन्हें सुरत संभाली तो यह उस वेले लाहौर आ गई। लाहौर रहिंदियां होयां इसकी शादी एक डॉक्टर नाल हुई जिसका नाम सी डॉक्टर सदरलैंड। हुण जिवें है ही है ट्रडिशन है इत्थों दी, उत्थों दी भी ट्रडिशन है कि हसबैंड का जिहड़ा नाम है ना वो सारा नेम जिहड़ा है बीबी के नाम नाल, पत्नी के नाम नाल जुड़ता है। तो उनका नाम हो गया बंबा सदरलैंड। 1957 दे विच ये चलाना कर गई ते चलाना भी इन्हें लाहौर किया। बड़ी होनहार सी है। इस दे खून दे अंदर महाराजा रणजीत सिंह दा, दलीप सिंह होरां दा खून सी। अजकल इन्हां दिनां दे विच ब्रिटेन गवर्नमेंट वालों, यूके वालों इस बंबा सोफिया दे नाम ते एक डाक टिकट जारी की गई है। और टिकट इस सत्कार विच जारी की गई है कि इन्हें बीबी नूं भी वोट पाउण दा अधिकार होना चाहिए है, इस्त्री नूं भी वोट पाउण दा अधिकार होना चाहिए है। ये यूके विच पहला नहीं सी। जिहड़ी मूवमेंट चली बंबा ने उस दे विच बहुत खास रोल अदा किया सी। इस दे सत्कार विच टिकट जिहड़ी जारी की जा रही है, की गई है। एक इसने कारज होर कीता, शायद तुहाडे नोटिस विच होवे जां ना। ये नासिक पहुंची। नासिक वो थां जिथे महाराजा दलीप सिंह ने अपनी मां जिंदा नूं, उसकी डैड बॉडी नूं इत्थे लिआंदा। अगे उसनूं पंजाब लिआउण दी आग्या ना मिली ते नासिक
गोदावरी के किनारे ते संस्कार किया। संस्कार करके ते जिहड़ी राख सी उत्थे ही ना जमीन दे विच दबा दित्ती। गोदावरी का किनारा नासिक दे विच। मैं जदों 2 साल पहला मैनूं जाण दा मौका बनिया, मैं लभण दा यतन किया। मैनूं लभण विच बड़ी कठिनाई होई, क्योंकि समय दे नाल ना वो थावां जिहड़ियां ने उन्हां दे कब्जे होर लोगों कोल चले गए, खास तौर पर धार्मिक लोगों के कोल चले गए, सनातनी कहाउण वालियां कोल चले गए, तो तकरीबन वो जिहड़े निशान ने ना वो मिटा दिते गए। लभदियां मैं खैर पहुँच गया। सरदार सरबजीत सिंह ते स्थानक ज्ञानी केवल सिंह जी ने मेरी बड़ी मदद की। लभदियां पहुँचया मैं, लेकिन मैनूं पता लगा कि इस सोफिया ने अपनी दादी माँ की राख उतों लई नासिक तो, ते दादी माँ की जिहड़ी अंतिम ख्वाहिश सी ना कि मेरी जिहड़ी मेरे शरीर का संस्कार मेरे पति की चिखा दे कोल करना लाहौर, वो तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन दादी माँ की राख उतों चुक के ते लाहौर लिया के महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी समाध बनी है उत्थे दफनाई। पिछले जिहड़े सी ना निशान हौली 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 करके मिटा दिते गए। मैं कोशिश की, ज्ञानी केवल सिंह होरां नूं मैं बेनती की, मैं कहा कि सिंह सभा नूं ते होर संगतां नूं नासिक निवासियों नूं तुसीं प्रेरो। इतिहास की यह निशानी है कि कदी बीते दे महाराजे उन्हां दा हाल इहो जिहा हो जाता है जिस वेले सरकारां बदलदियां ने, अपनी मर्जी दे नाल मां दा संस्कार भी लाहौर लिजा के नहीं कर सकिया। दलीप सिंह इत्थे कीता गया, कुछ बोर्ड लिख दिता जाए या कुछ कर दिता जाए, निशानी रखी जाए। मैं इस तो अगे जाना चाहता। 1957 दे विच सोफिया चलाना कर गई, जिसका नाम उस वेले सी बंबा सदरलैंड। जिस वे चलाना कर गई क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छल करके दलीप सिंह होरां नूं धर्म तो गिरा दिता सी, ईसाई बना दिता सी। सुभावक सी कि उन्हां दे बच्चे भी सारे ईसाईयत धारण करके तुरदे। बंबा ने भी ईसाईयत धारण की हुई सी, ते उसकी शादी भी डॉक्टर सदरलैंड नाल एक ईसाई दे नाल हुई। नतीजे वजों जिस वे चलाना किया बंबा ने, तो उसनों भी एक कबर दे विच दफनाया गया। लाहौर दे विच कब्रस्तान बनया होया है, तुसी जाओ किते ते वेखण दा यतन करियो जे। उस कबर दे उपर की लिखिया होया है, मैं जिस वे सुरिंदर कोछड़ होरां दा लेख पढ़िया, बड़े विद्वान ने, अपने बड़े अच्छे पत्रकार ने, खास तौर पर वो पाकिस्तान में साड़ी रह गई सिख विरासत जिहड़ी है उहदे बाबत जाणू करवाउंदे रहिंदे ने। उन्होंने लिखिया, उन्होंने जिक्र नहीं किया, पर मैनू इस गल का पता सी कि ये किस राइटर दियां लिखियां हुई पंक्तियां ने। शेख सादी की लिखत ते बंबा सदरलैंड की कबर दे सिरे ते लिखी हुई। लिखिया कि फर्क शाही और बंदगी बरखास्त जो कज़ा नविश्ता आयद ख्वेश जो आज मुर्दाबाज कुनद ना शनासत तवंगर आज दरवेश। आखिया कि यह जड़ा है ना, ये साडे अज दे प्रसंग नाल संबंध रखने वाला। कहता जिस वेले दफनाया तो दफनाउण वालियां नूं पता सी कि यह महाराजा रणजीत सिंह की पोतरी है। वो महाराजा रणजीत सिंह जिहड़ा पंजाब का महाराजा सी, लाहौर दरबार का महाराजा सी, जिसने दूर तक खंडा खड़काया। उस वेले दे जितनियां भी रियासत बनियां हुई सन, सब नालों मजबूत शक्तिशाली महाराजा रणजीत सिंह की रियासत, उसका राज ते शुभ गुणों की, चलो जिक्र की करना है इस वेले, बेअंत शुभ गुणों का वह मालक सी। कहते ने पर कितनी अजीब बात है, रब ने बनाई हुई
कि अज महाराजा रणजीत सिंह की पोतरी इस कबर में दफनाई गई है, समा पैण ते कोई इस कबर की मिट्टी पुट्टे थल्यों लभण देखण का यतन करे, नहीं पछाण सकेगा ये महाराजा रणजीत सिंह की पोतरी है कि कौन है। फर्क शाही और बंदगी बर्खास्त। शाही तो भाव है अमीर, बंदगी तो भाव है बंदगी करने वाला दरवेश। कोई अमीर है कोई दरवेश है, ये सारा फर्क मिट जाता है। चुकजा नविश्ता आयद खेश, जिस वेले ना रब्बी लिखत आ जाती है उठ के जान वाली। जिवें असीं पढ़ते हैं घल्ले आवे नानका सदे उठी जाए। कहने लगे जे इस गल नूं वेखना होवे ना, कुदरत दे इस नेम नूं देखना होवे बई मर जाण तो बाद बंदियां दा की हाल हुंदा है। किसी नूं अमीर मन्निया जाता है, किसी नूं फकीर मन्निया जा सकता है, किसी नूं दरवेश आखिया जा सकता है, किसी नूं राजा आखिया जा सकता है। जो अज मुर्दाबाज कुनद, जिस वेले किते मुर्दे की कबर पुट्टी जाती है ना शनासद नहीं पछाण हुंदी, तवंगर अज दरवेश ये देन वाला है कि लैण वाला मंगता है, ये कोई अमीर है कि कोई फकीर है। Nobody knows। कोई व्यक्ति उसनूं तमीज नहीं कर सकता। फिर हड्डियां सारियां दी इक्को जिहियां जे बचियां तां सबना नूं कीड़ियां ने खा जाना हुंदा है, मिट्टी दे विच पिया होया नूं। सत्कारयोग बाबा जी अज भी चेता करवाउंदे ने, जे तू सुचेत नहीं होवेगा तां तू कितना भी वड्डा होवेगा, कितना कुछ भी तू जोड़िया होया होवेगा, पछताहेगा मन। तां ते की कर, चेता रख लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाहेगा। धन जोबन का गर्भ ना कीजै, कागज ज्यों गल जाहेगा। जिवें कागज पानी विच पै जाए तो गल जाता है ना, शरीर भी गल जाता है, मुक जाता है। असीं अक्सर अपने सिख भरावां दा, सिख बच्चियां दा संस्कार करते हैं, साडियां अखां दे वेखदियां 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 सोहना तन सड़ के सुआह हो जाता है, मिट्टी की मुठ हो जाता है। फिर आखिया जो जम आए केस गहे पटक है, तां दिन किछ ना बसाहेगा। जो जम आए केस गहे पटक, जदों जम ने आके केसां तो फड़ लिया, ता दिन उस दिन किछ ना बसाहेगा, फिर तेरा कोई वस नहीं चलेगा। मैं अजे थोड़ा जिहा होर ठहर लवां, मैं इतना रीझ दे नाल मकान बनाया, मैं मंदिर बनाया, मैं महल बनाया, मैं बंगलो बनाया, मैं इतनी जायदाद बनाई, इतना मैं धानी इकट्ठा किया, मैनू खाण दा थोड़ा जिहा मौका मिल जावे। कहने लगे बिल्कुल नहीं, उस दिन तेरा कोई यत्न नहीं चलेगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटां खाहेगा। जे तू सिमरन भजन नहीं कीता ते सिमरन भजन दे नाल एक निर्मल अवस्था अंदर पैदा हुंदी है, डिवेलप हुंदी है, जिहड़ी सबना अंदर होनी चाहिदी है, वो है दया। ना तेरे अंदर तरस आया, हुण दया बिरती ही सानू अगां परोपकार वाल प्रेरदी है, दया बिरती ही सानू सेवा वाले पासे प्रेरदी है। तो मुकदी गल, ना तो भलिया तू संगत कीती ते भलिया ना तू कोई सेवा कीती। जाना तो है ना, ते जाना भी जरूरी है। महाराज सतगुरु गुरु कलगीधर साहब जफरनामा दे विच जदों लिखदे ने, कहन लगे तू गाफिल मशो जी सिपंजी सराए के आलम बागुजरत सारे जा बजाए। तू गाफिल मश हो, गाफिल ना हो, अवेसला ना हो, बेध्याना ना हो। औरंगजेबा अज तू 95 वरियां दा हो गया ते तां की हो गया, तां की हो गया। सारे प्राहुणे
एक रात बिता के तो नहीं जाते ना, कोई एक रात तो वधेरे भी रह लेंदा है, कोई 2 रातां कट गया, 3 रातां कट गया, 4 रातां कट गया, ओए हफ्ता कट गया, पर तेन चेता रखना चाहिए भी प्राहुणा प्राहुणा है। सरां दे विच आया होया सदीवी नहीं कोई टिकिया रहिंदा, तां ते तू गाफिल मशाओ, अणगहली ना कर, बेध्याना ना हो, अखा ना मीट, जी स्पंजी सराए किस तू वेसला ना हो। जिथे तू बैठा होया है ना, ये 2-4 दिनों की सरां है कि आलम बागुजरत, दुनिया चल रही है, जा रही है, सरे जा बजाए अपनी 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 वारी के अनुसार। हुणे हुणे आशा की वार दे राही गुरु नानक साहब के बचन चेते कीते, आपे ही करना कियो, बोलो सारे, आपे ही करना कियो, कले आपे ही तैं धारी है, देखें कीता है अपना, धर कच्ची पक्की, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनो विसारी है। चेते कर, धर्मराय जब लेखा मंगै, फिर यह गल निश्चित है, सतगुरु महाराज ने किन्नी बारी समझाया, जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत कहाल, नानक ते मुखुजले कीती, छुट्टी नाल चंगियाइयां बुराइयां वाचै, धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। फिर उसले की मुंह लैके जाएगा, कहत कबीर सुनो रे संत हो, साध संगत तर जाएगा। जे तू तरना चाहना है, पारले बन्ने लगना चाहता है, जीवन यात्रा सफल करनी चाहता है, तो की करया कर, प्रभाते जागया कर, करतार नाल जुड़िया कर, फिर संगत विच आके बैठिया कर, धर्म की जाच नूं सिख, फिर सेवा कर, ते एक दिन तर जाएगा, तां ते नहीं तां पछताएगा। मन राम सिमर पछताएगा, मन राम सिमर पछताएगा, राम सारे आखो, पापी जियारा लोभ करतो है, पापी जियारा लोभ करतो है, पापी। वाह वाह वाह, ये जीवन का सच आज काल उठ जाएगा। मैं भी जाना है, तू भी जाना है, सारिया ने जाना है, कमर बांधे यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। पछताना ना पवे, सुचेत कीता बाबा जी ने, सुचेत कीता गुरु नानक साहब ने, सुचेत कीता धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने। असी सारे सुचेत हो जाइए, जीवन सफल हो जाए। धन्यवाद। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने। सर्वत